Hi everyone and good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. My name is Sunita. I am from UP. I hope you are all feeling positive today and learning this beautiful and amazing language in a fun and simple way. Friend, this is day 29 of English practice with me. I am here to improve my English fluency and I want to become confident. That is why I have started this series. I hope you are all enjoying this series very much and learning something new in every single day. Friends, today I am going to share a story. I hope you will learn a lot of things with this story. So, without any further delay, let's jump into the video. There was a crow. It was very thirsty. It was flying here and there in the search of water, but it could not find water anywhere. At the last, he got tired and sat on the tree. It was looking here and there while sitting on the branch of a tree. Suddenly, he saw a pitcher. He flew over to the pitcher and he saw water in it. He saw water in the pitcher. But there was a little water in the pitcher. You know, the crow was very clever. There were some pebbles near the pitcher. One by one, the crow dropped pebbles into the pitcher. At the final moment, the water level in the pitcher came up. The crow quenched his thirst and flew away. Friend, this is a very small story I shared with you, and now I am going to explain all these lines in Hindi. It means I am going to try to explain in Hindi. This method helps me to improve my communication skills. I hope it will help you. Okay. There was a crow. एक कौवा था. यहाँ पे देयर एक डमी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है. जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता है वहां पे हम देयर का यूज करते हैं. तो इसकी हिंदी हो जाएगी एक कौवा था. It was very thirsty. It means यह was means था. Very means बहुत, thirsty means प्यासा. यह बहुत प्यासा था. It was flying here and there in the search of water. यह past continuous का sentence है. It means यह was means था. Flying means उड़ रहा था. Over means यहाँ. There means वहाँ. And means और. In the search of water, पानी की तलाश में. यह यहाँ और वहाँ पानी की तलाश में उड़ रहा था. Suddenly, he got tired. Suddenly means अचानक से. He got tired. He means वह. Tired means थक गया. वह थक गया था. And sat on the tree. ये भी पास्ट इंडिफिनिट का ही है. sat means बैठ गया. on means पर. tree means पेड़. और पेड़ पर बैठ गया. It was looking here and there while sitting on the branch of tree. It means यह. watch means था. looking means देख रहा. यह यहाँ और वहां देख रहा था. While sitting on the branch of tree means पेड़ की शाखा पर बैठने के बावजूद भी यह यहाँ और वहां
देख रहा था। सडनली मीन्स अचानक, ही सा अ पिक्चर, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म लगा है, इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा। ही सा अ पिक्चर, उसने एक सुराही देखी, पिक्चर में सुराही, ही सा अ पिक्चर, उसने एक सुराही देखी। देयर वाज वाटर इन द पिक्चर, देखिए यहाँ पे देयर का यूज किया गया है डमी सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर वाज वाटर इन द पिक्चर, मतलब कि सुराही में पानी था, बट देयर वाज वाटर, देयर वाज अ लिटिल वाटर, सुराही में कम पानी था। बट लेकिन क्रो वाज वेरी क्लेवर, द क्रो वाज वेरी क्लेवर, यहाँ पे हम कोई एक्शन वर्ब तो आया नहीं है। वॉच मिस था, क्रो मिस, कौवा क्लेवर मिस चालाक, कौवा बहुत चालाक था। यू नो देयर वर सम पेबल्स नियर द पिक्चर, देयर वर सम पेबल्स, यहाँ पे देखिए आपकी जो पेबल्स मिस होता है, स्मॉल स्टोन, छोटे पत्थर, पेबल्स मिस होते हैं छोटे पत्थर, और हम यहाँ पे देयर वर सम, तो हम यहाँ पे वर का यूज किए हैं पेबल्स के अनुसार। अगर एक पेबल होता तो हम वॉच का यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज कर रहे हैं। ओके, देयर वर सम पेबल्स नियर द पिक्चर, इट मीन्स सुराही के पास कई सारे छोटे छोटे पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे। वन बाय वन, इट मीन्स एक के बाद एक या एक एक करके। वन बाय वन ही ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द पिक्चर, एक के बाद एक उसने, ड्रॉप मीन्स गिराया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप का सेकेंड फॉर्म लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ड्रॉप लगा है। उसने एक एक करके छोटे छोटे पत्थरों को पानी में गिराया। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इनटू का मतलब में होता है और इनका भी मतलब में होता है, तो हम यहाँ पे इनका यूज न करके इनटू का यूज क्यों कर रहे हैं? तो यह एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसमें हम ये समझेंगे कि इनटू और इनका यूज कहाँ करते हैं। तो इनटू का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें गति बताई जाती है, मोशन बताया जाता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहां पे सेंस में का आता है, इट मीन्स जो पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि उसमें उसमें ये बताया गया है कि जो पत्थर थे वो पहले बाहर थे, पत्थर को उठा करके, छोटे पत्थर को उठा करके पानी में डाला है, इट मीन्स उसका जो पोजीशन था, जिसको जिसकी वो अवस्था थी ना, वो चेंज हुई है। जब कोई भी चीज मोशन में रहता है और उसकी अवस्था चेंज होती है, तो हम वहां पे इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं। इनका यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई भी चीज किसी के अंदर पहले से मौजूद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम, इट मीन्स मैं रूम में हूँ, मैं रूम के अंदर विद्यमान हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, आई आई इंटर्ड इन द रूम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए मैं रूम से पहले बाहर थी और मैं रूम के अंदर गई हूँ। ठीक है, मतलब कि जो मेरा अवस्था है, जो मेरा कंडीशन अवस्था है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर गई हूँ ना, जैसे एक पोजीशन से, एक स्टेट से मैं दूसरे स्टेट में गई हूँ और उसमें मोशन हुआ है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है और उसमें मोशन होता है, तो हम वहां पे इनटू का यूज करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्रो था, द क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द वाटर, इट मीन्स कौवे ने छोटे पत्थरों को पानी में डाला, क्योंकि जो पत्थर तो पहले बाहर थे तो उसने पानी में डाल, तो यहाँ पे हम इनटू का यूज किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं कि आई आई थ्रू बॉल इनटू द वाटर, मैंने बॉल को पानी में फेंका।
पहले बाल मेरे पास था लेकिन प्रेजेंट में बाल मेरे पास नहीं है, मैंने इसको पानी में फेंक दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो समझाने की ट्राई कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इन और इनटू में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही मैं स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के बेस पे मैं सारी चीजें समझती हूँ और सीखती हूँ। दिस इज द राइट वे आई लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। ओके, एंड एट द लास्ट और अंत में द वाटर लेवल इन द पिक्चर केम अप, यानी कि जो पानी का सतह था, वाटर लेवल पानी का सतह सुराही में ऊपर आया। बस पानी का स्तर नीचे था ना, जैसे ही उसमें एक कंकर पड़ा, पत्थर पड़ा, पानी का सतह ऊपर आ गया। ओके, द क्रो क्वेंच हिज थर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेंच में से होता है प्यास बुझाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए हैं, तो ये भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। एंड फ्लू ओवर, और उड़ गया। फ्लू ओवर ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी सब पास्ट टेंस है। ही फ्लू ओवर और वह उड़ गया। आई होप दिस स्टोरी will help you to improve your communication skills. This is the right way I practice English. You know, at the first time I read book, I read story, and after that I understand its meaning and its grammar rules. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope this video is helpful for you, or this video will help you. Thank you, friend. I will meet in the third step English practice with me. Thank you so much for watching my video. Bye bye.